Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion series. So we will be revising the complete concepts of the chapter through MCQ discussion. And topic for this lecture is solid state. So let's start with the questions. Before starting beta, make sure you subscribe to this channel so that you can get more and more videos on MCQs which will help in revising the topic thoroughly, right? So beta, in previous lecture on solid state, we have discussed the concepts like crystalline solid, amorphous solid, what is the difference between them. There were 7 type of crystal systems, and then packing you have done, CCP and HCP, what is the difference between them, which one is more efficient. Actually both of them are equally efficient, both of them are showing the 74% occupancy, right? And apart from that, unit cells, question related with packing, question related with unit cells we have taken in the previous video, and even the nearest neighbor distance calculation and calculation of radius also in various unit cells. Now in this lecture again we will be having some questions on how to calculate the distance between two neighbors in the various unit cells like BCC or FCC or simple cubic. Apart from that, various types of crystal structure will be taken up through questions, crystal structures of NaCl and then cesium chloride, ZnS and many more, and formula prediction. You will be told that atom A is present at some point, some lattice point in the crystal, atom B is present at some other lattice point, predict the formula of the crystal. Such type of questions will be the main focus, and last of all we can come to defects, right? So let's start with question number 16. The question is, lithium metal crystallizes in body centered cubic crystal. You are given lithium, ये alkali metal है, and alkali metal lithium is in BCC cubic crystal system. If the length of the side of the unit cell is given, side of unit cell का length मतलब आपको edge length given है 351 picometer. Find out the atomic radius of lithium. तो क्या करेंगे हम, रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज लेंथ इज गिवन, जो भी गिवन है वो पहले लिखते हैं. एज लेंथ इज 351 पिकोमीटर and radius is the question mark for lithium atom, and arrangement is given to us BCC. BCC मतलब body centered cubic arrangement. As a result बेटा हम एक टेबल लास्ट वीडियो में भी बनाया था रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग यूनिट सेल्स में. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा √3/4a. I can give a quick revision for the relations. For simple cubic रेडियस कैसे कैलकुलेट होता है, इट इज a/2, एंड फॉर FCC रेडियस इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन a/2√2, एंड फॉर BCC इट इज कैलकुलेटेड बाय √3/4a. तो पहले यूनिट सेल बहुत केयरफुली देखना है उसके बाद आपने फॉर्मूला डिसाइड करना है, ठीक है. तो यहाँ पे BCC बोला था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर जाके चेक करो. BCC इज गिवन टू यू, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इज गिवन फॉर लिथियम. एज अ रिजल्ट हमारा ये रिलेशन लगेगा √3/4a. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ. √3 का वैल्यू भी हमें खुद से पता होना चाहिए. √3 बेटा 1.732 होता है, तो पेपर में बैठ के रूट का वैल्यू निकालना नहीं है. √2 √3 पता होने चाहिए, अदरवाइज इट विल कंज्यूम टाइम. एंड 351 पिकोमीटर इज द एज लेंथ गिवन टू यू. 1.732 को आप मल्टीप्लाई करोगे 351 से एंड डिवाइड करोगे 4 से. तो ये बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाता है 151.9. यूनिट्स देखो पिकोमीटर आएंगे. क्यों आ रहे हैं पिकोमीटर? क्योंकि हमारे को एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन थी, तो इसलिए आपका आंसर रेडियस का पिकोमीटर में आएगा. हेंस द आंसर बिकम्स ए ऑप्शन. यू कैन सी द क्वेश्चन अगेन. आपको रेडियस कैलकुलेट करना था और क्या क्या गिवन था हमें. BCC क्रिस्टल का
एज लेंथ गिवन था, एज लेंथ वॉज 351 पिकोमीटर एंड रेडियस वॉज टू बी कैलकुलेटेड। इसी तरह कभी अगर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो फिर इसका डबल होगा। हमने लास्ट वीडियो में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और रेडियस का डेरिवेशन प्रॉपर किया था। ये तीन रिलेशंस जो अभी मैंने लिख रखे, इन तीनों का डेरिवेशन प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, राइट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। 17th क्वेश्चन देखो क्या है, निकल क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। अब ये क्वेश्चन निकल के ऊपर है और वो एफसीसी में। याद भी रखना है साथ साथ में कि अल्कली मेटल्स बीसीसी में क्रिस्टलाइज होती हैं, निकल इज एन एफसीसी यूनिट सेल एंड एज लेंथ इज गिवन टू यू इन नैनोमीटर 0.3524 नैनोमीटर। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ निकल एटम। आपको निकल एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है, तो पहले लिख लो एफसीसी एंड रिलेशन फॉर एफसीसी होता है A/2√2, राइट। बस अब एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 0.3524 एंड डिवाइड बाय 2 इंटू √2। √2 का वैल्यू 1.414। we should know the value for √2 and simple by substituting the value you will come to the answer। आपका आंसर बनता है बेटा बी ऑप्शन 0.1246 नैनोमीटर। 0.1246 नैनोमीटर कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, हेंस आंसर इज दिस, राइट। टेबल अगर बनाना है तो हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं इन रिलेशंस के थ्रू, एक तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ एटम। सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एज लेंथ होता है और रेडियस होता है हाफ ऑफ द एज लेंथ। एंड इफ यू कम टू एफसीसी देन इट इज A/√2 and in FCC the radius will be A/2√2. If BCC is given to you then it is √3/2a. It is √3/4a. In this manner you have to learn the expressions and then simple calculation will help you to come up to the result, right। कभी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछ लेते हैं, कभी रेडियस पूछ लेते हैं। मेन बात याद रखने का ये है कि नियरेस्ट नेबर्स हैं कौन कौन से, ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स एट द कॉर्नर्स, एटम्स एट द कॉर्नर्स आर नियरेस्ट नेबर्स। जो कॉर्नर के एटम्स हैं बेटा वो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं याद है तो हमें प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। एफसीसी में नियरेस्ट नेबर कौन है, कॉर्नर एटम एंड एटम प्रेजेंट इन द फेस सेंटर। कॉर्नर प्लस एटम प्रेजेंट इन इट्स ओन फेस। अपनी फेस के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है वो कॉर्नर के साथ नियरेस्ट नेबर होगा। बीसीसी में नियरेस्ट नेबर्स कौन हैं, बीसीसी में है कॉर्नर एंड एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, एटम एट बॉडी सेंटर, दे आर द नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। दे आर दी नेबर्स एंड कौन से नेबर्स, नियरेस्ट वाले। नियरेस्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं, रेडियस कैलकुलेट करना है तो फिर रेडियस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस से भी आगे फर्दर हाफ कर देना होता है। ये देखो जितना भी मैंने नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट किया, ये तीन वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाई आपको, उसके बाद रेडियस उससे भी हाफ हो जाता है, राइट। कौन कौन आपस में टच करते हैं, कौन कौन आपस में नियरेस्ट नेबर्स हैं, वो एक बारी फिर से देख लो। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर के एटम्स, एफसीसी में कॉर्नर के साथ फेस सेंटर वाला एटम एंड बीसीसी में कॉर्नर के साथ एटम एट द बॉडी सेंटर, दे आर द नियरेस्ट नेबर्स। तो आई थिंक हमारा क्वेश्चन का आंसर तो मेंशन कर दिया था पहले ही। रेडियस आपको कैलकुलेट करना था एफसीसी में, तो ये आ गया 0.1246। गॉट इट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चंस आते हैं बेटा फॉर्मूला कैसे प्रिडिक्ट करना है।
You are given in a face-centered cubic arrangement of A and B atoms. A atoms are at the corners. कॉर्नर पे A एटम प्रेजेंट है और B एटम इज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स, राइट. वन ऑफ A एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर. क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर मतलब एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी एक बार ही आया है और इधर जेई मेंस में भी, राइट. बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. बोर्ड का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, वहां पे भी क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे. फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, हम पहले वो लिखते हैं. हमें दिया है कि ए कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. 8 कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल के और कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होती है. बी एटम इज प्रेजेंट ऑन द फेस सेंटर. फेस के सेंटर पे बी प्रेजेंट है. तो फॉर्मूला निकालना है. क्या करेंगे, बट हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है. A is missing, one of the A is missing from the corner. 8 की जगह 7 जगह, instead of 8 you will have A present on 7 corners, not on all the 8, right. तो सिचुएशन क्या है कि A के लिए हम लिखेंगे 7 corners and 1/8 तो हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होती है. हमने 8 क्यों नहीं लिया, 7 क्यों लिया है, बिकॉज 1A is missing, one of the A is मिसिंग. तो ये आ गया 7/8. अब देखो बी कहां पे प्रेजेंट है. बी हमें दिया है फेस सेंटर पे. फेसेस कितनी होती हैं, 6. एवरी यूनिट सेल हैज 8 कॉर्नर, 6 फेसेस एंड 12 एजेस. कीप इन माइंड. सो 6 फेसेस और फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन बेटा हाफ रहेगी. एज ए रिजल्ट आपके पास 3 आ गया. बस अब रेशो लेके हम फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर देंगे. हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना था, ठीक है. A:B का रेशो ले लो. A:B 7/8 3. 7/8 मतलब 7:24. A के 7 एटम्स होंगे तो B के 24 एटम्स होंगे. हेंस द फॉर्मूला बिकम्स A7B24. लेट्स कम टू द ऑप्शंस. A7B24 मतलब C ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है. सी ऑप्शन इज द आंसर. तो इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहां पे कोई एक एटम मिसिंग कर दिया है. मिस करने से फिर वो फ्रैक्शन में आ रहा है, 7/8 हो रहा है. एज अ रिजल्ट आपको होल नंबर में रेशो देनी है. गॉट इट, क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. एन एलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव कॉपर कॉन्स्टिट्यूटिंग द सीसीपी लैटिस. कॉपर सीसीपी लैटिस बना रहा है. एंड सिल्वर कहां पे प्रेजेंट है, सिल्वर इज प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर्स. गोल्ड कहां पे प्रेजेंट है, ऑन द बॉडी सेंटर. एलॉय का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है. 3 मेटल से बना हुआ हमारा एलॉय है. कौन कौन सी 3 मेटल्स हैं, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड. तो जब ये एलॉय में अलग अलग मेटल्स क्रिस्टलाइज होती हैं तो कॉपर कौन सी पोजीशन ले रहा है, कॉपर इज ऑक्यूपाइंग द मेन लैटिस सीसीपी लैटिस. सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक्ड लैटिस पे कॉपर है. और सिल्वर एज सेंटर्स पे. जो भी दिया है वो लिखना है पहले, जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले क्वेश्चन में उसको लिखना है. गोल्ड इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेंटर. फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है. तो देखो बेटा, जब भी कोई सीसीपी में होता है ना तो इट मीन्स उसके 4 एटम्स हो गए. डिटेल आपको सिखाई भी थी सीसीपी का. क्या डिटेल होता है सीसीपी, मतलब 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर्स. उनका कंट्रीब्यूशन हाफ, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8. तो क्या हमारे पास आंसर 4 आ रहा है, ठीक है. तो याद ये रखना है सीसीपी लैटिस का जो यूनिट सेल होता है वो बेटा एफसीसी के जैसा ही होता है. सीसीपी का यूनिट सेल एफसीसी है. तो सीधा सीधा भी आप याद रख सकते हो एफसीसी मतलब 4 एटम्स. गॉट इट. तो कॉपर के 4 एटम हैं और सिल्वर कहां पे है, एज सेंटर पे. एजेस हमेशा 12 होते हैं यूनिट सेल के. 12 एजेस में हर एज के ऊपर कंट्रीब्यूशन 1/4 होती है, मतलब 1/4 ऑफ द एटम उस यूनिट सेल को मिलेगा. रिमेनिंग 3/4 ऑफ एटम उस यूनिट सेल से बाहर है,
राइट। तो एटम को बॉल की तरह इमेजिन करो तो जल्दी से समझ आएगा कि एज के ऊपर अगर कोई बॉल पड़ी है तो उस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1/4 मिलता है, राइट। तो हमारे पास सिल्वर का भी वैल्यू आ गया 3 एटम्स, सिल्वर के 3 एटम्स। और फिर गोल्ड के निकालने, गोल्ड इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर तो एक ही होता है, बॉडी सेंटर पे फुल एटम आता है, याद रखना है। यूनिट सेल के सेंटर में अगर कोई बॉल रखी जाए वो फुल बॉल उसी यूनिट सेल के अंदर आएगी, ठीक है। एटम्स आर स्फेरिकल तो हम उसको बॉल के साथ कंसिडर करते हैं। अब हम रेशो लेंगे, कॉपर इज टू सिल्वर इज टू गोल्ड, रेशो से ही फॉर्मूला बनेगा। तो कॉपर के हमारे पास 4 एटम्स आए थे, सिल्वर के 3 और गोल्ड के 1 आए। तो फॉर्मूला बना Cu4 Ag3 एंड Au1, गोल्ड का एक एटम। दिस इज योर आंसर। नाउ वी कैन चेक द ऑप्शंस। हमने हर किसी को जो जो पोजीशन दी थी उसके ऊपर रख के कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। कंट्रीब्यूशन क्लियर होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं पता है तो ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आंसर बेटा सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में लिखा है 4 एटम कॉपर के, 3 एटम सिल्वर का और गोल्ड का 1 एटम। हम लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम, contribution of an atom on the corner। कॉर्नर पे अगर कोई एटम है तो सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर आएगी। अगर आपको फेस सेंटर पे कभी भी चेक करना है तो 1/2 आएगी। अगर आपको चेक करना है एज के सेंटर पे देन इट विल बी 1/4। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट फॉर बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे 1 फुल एटम आता है। बॉडी सेंटर को बेटा क्यूबिक साइट भी बोला जाता है। बॉडी सेंटर की जगह कभी कभी क्वेश्चन में क्यूबिक साइट भी बोल देते हैं, बट हमारे इस क्वेश्चन में तो बॉडी सेंटर ही कहा गया था, यहां तो सीधा सीधा बॉडी सेंटर बोला था, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अनदर क्वेश्चन ऑन फॉर्मूला प्रिडिक्शन। यू आर गिवन लिथियम सेलेनाइड। जैसे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव हो तो ऑक्साइड होता है, ऐसे सिलीनियम पे 2 नेगेटिव होगा तो सिलेनाइड। लिथियम सेलेनाइड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए क्लोजेस्ट पैक्ड एरे ऑफ सेलेनाइड आयन्स विद लिथियम आयन्स इन टेट्राहेड्रल होल्स। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, क्लोजेस्ट पैक एरे मतलब अरेंजमेंट। क्लोजेस्ट पैक अरेंजमेंट तो सेलेनाइड आयन्स का है, और टेट्राहेड्रल होल्स में कौन प्रेजेंट है, लिथियम प्रेजेंट है। ये देखो टेट्राहेड्रल होल्स में लिथियम एंड सिलीनियम सीसीपी अरेंजमेंट बना रहा है। तो हम इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है वो लिखते हैं। सिलीनाइड आयन ये होता है, जैसे ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, सिलीनाइड इज Sc2 नेगेटिव, सीसीपी अरेंजमेंट। और लिथियम इज प्रेजेंट ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम ऐसे लिखेंगे टीवी। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेटा डबल होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर यहां पे n एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n हो गई। बेटर यही होता है कि आप जब क्वेश्चन करो तो आप सीसीपी का यूनिट सेल देख लो, उसका यूनिट सेल एफसीसी के जैसा होता है। हम ऐसा मेंशन भी कर सकते हैं, सीसीपी और एफसीसी एक ही बात है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का नाम सीसीपी है। उस सीसीपी का सिंगल यूनिट सेल देखेंगे तो एफसीसी के जैसा दिखेगा। तो एफसीसी के अंदर 4 एटम्स। एंड लिथियम कहां पे है, लिथियम इज प्रेजेंट ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो डबल होते हैं, 2 × 4 8। अब रिलेशन के लिए हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए रेशो लेनी पड़ेगी, लिथियम इज टू सिलीनियम 8:4। 8 आपके पास लिथियम के एटम हैं और 4 एटम्स आपके पास सिलीनियम के हैं। एज अ रिजल्ट इट इज Li2Se, मतलब ये 2:1 बन गया। 2:1 बनने से फॉर्मूला बन गया Li के 2 एटम, सिलीनियम का 1 एटम। कमिंग टू द ऑप्शंस, 2 लिथियम के और 1 सिलीनियम का। हाँ, आंसर इज ए ऑप्शन। 2 एटम्स ऑफ लिथियम, 1 एटम ऑफ सिलीनियम। टेट्राहेड्रल होल्स में वो प्रेजेंट था। अगर ऑक्टाहेड्रल होल बोलते तो फिर हमने डबल नहीं करना था। ऑक्टाहेड्रल
वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल होल्स उतने ही होते हैं जितने एटम हैं, पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होते हैं। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन 21। स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड, मतलब CCP, and cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ions। ऑक्साइड आयन से आपका यूनिट सेल बना है, क्यूबिक क्लोज यूनिट सेल ऑक्साइड आयन्स का है। एंड 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर occupied by divalent metal and octahedral voids are made up of monovalent atom। अब देखो इस क्वेश्चन में टोटल 3 चीजें हैं, यहां 2 तरह की मेटल्स हैं। जनरली तो एक कैटायन एक एनायन होता है, बट मिक्स्ड ऑक्साइड है ना, क्वेश्चन ने बिगनिंग में कह दिया मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब 2 मेटल्स हैं। कौन कौन सी 2? एक डाइवेलेंट मेटल और एक मोनोवेलेंट मेटल। तो हम पहले मेंशन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या क्या है। वी आर टोल्ड दैट क्यूबिक यूनिट सेल इज ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड पे आप लिखोगे O2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन CCP, एंड डाइवेलेंट मेटल पहले A का नाम इन्होंने डाइवेलेंट दिया है A+2। ये कहां पे प्रेजेंट है? ये बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है, तो हम TV लिख देते हैं। और मोनोवेलेंट एटम इज B एटम जो है, B मेटल जो है वो मोनोवेलेंट है, उसके ऊपर +1 चार्ज होगा और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। मोनोवेलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, डाइवेलेंट डबल बॉन्ड बनाता है। एंड अब हम फॉर्मूला निकालने के लिए रेडी हैं। हमें CCP देखते ही नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गया। कैन आई मेंशन फॉर ऑक्साइड अरेंजमेंट इज CCP एंड 4 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स लिखना है ना, तो CCP को देखते ही हम 4 लिख देते हैं। आफ्टर दैट A+2 कहां पे प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं तो 8 हो गए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डबल नहीं होते, जो भी नंबर ऑफ एटम्स है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद रखिए, अगर हमारे पैकिंग में n एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n बनेंगे, और अगर 100 है तो 100 बनेंगे, ये मतलब है, राइट। अब रेशो निकाल दो, A:B ऑक्साइड या ऑक्सीजन बोल सकते हैं। तो रेशो विल बी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या पूरे ऑक्यूपाइड थे? ये तो हमने देखा ही नहीं, 1/4 बोला था। 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट ऑक्यूपाइड है, ऑक्टाहेड्रल पे B है, बट वो उसको आपने 1/4 करना है टेट्राहेड्रल वॉइड को। कम टू टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड को 1/4 कर दो। ये टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, बट 1/4 लेना पड़ेगा। 1/4 लोगे तो 1/4 ऑफ 8 विल बी 2। अब रेशो निकालते हैं। A हमारे पास 2 एटम्स आ रहे हैं, B के बेटा 4 एटम्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन के 4 आ रहे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर क्वेश्चन ने कहा होता कि ऑल आर ऑक्यूपाइड तो मैंने 8 लेना था। अगर बोला, हमारे केस में क्या बोला है, 1/4 इज ऑक्यूपाइड, तो 1/4 ऑफ 8 लेना है। सो रेशो बन गई 1:2:2। एज अ रिजल्ट फॉर्मूला बना AB2O2। एक एटम A का, 2 एटम B के और 2 एटम ऑक्सीजन के। इस रेशो में आपके पास फॉर्मूला आएगा। हेंस द आंसर फॉर क्वेश्चन 21 इज D ऑप्शन, AB2 एंड O2। गॉट इट? तो ये पूरी डिटेल है आपके पास। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला प्रिडिक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी कैलकुलेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम हैज अ BCC स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी कैलकुलेशन में जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन है बेटा वो लेंदी रहेगी, बट स्टिल दिस क्वेश्चन कम्स इन ऑब्जेक्टिव। चाहे ये सब्जेक्टिव के अंदर तो आता ही है, बट ऑब्जेक्टिव में भी विद दैट लेंथी कैलकुलेशन क्वेश्चन कम्स। सो वी हैव अ पोटेशियम मेटल, उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमें दिया है 4.52 एंगस्ट्रॉन, एटॉमिक वेट दिया है। हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है पोटेशियम की। तो क्या करेंगे, यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारी हेल्प के लिए ये फॉर्मूला गिवन है, डेंसिटी इज Z/m/A³ एवोगैड्रो नंबर। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो पहले तो रिलेशन देखो, डेंसिटी ऑफ
unit cell. Can I say density mass upon volume का रेशो है? Density of unit cell is equal to mass of the unit cell divided by volume of unit cell. Mass upon volume of unit cell. ठीक है, तो मास कैसे निकलेगा यूनिट सेल का? मास ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स. एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं वो देखने पड़ेंगे. सिंपल क्यूबिक में तो एक ही होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आपको पता होने चाहिए. फिर आपको हर एटम का मास पता होना चाहिए. मास ऑफ एटम पता होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल. इससे आपका मास ऑफ यूनिट सेल आ गया. और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा कैसे निकलता है? वॉल्यूम इज एज लेंथ क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम ऐसे ही होता है ना, ए क्यूब. तो अब देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल का सिंबल Z होता है, जो कि सिंपल क्यूबिक में 1 रहेगा, बीसीसी में ये 2 रहेगा, एफसीसी में ये 4 रहेगा. और नंबर ऑफ एटम्स हो गया. अब चाहिए मास ऑफ एटम. क्या हम सबको पता है मास ऑफ एटम हम ऐसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. बिकॉज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का वेट होता है मॉलिक्यूलर मास. आपको एक एटम का मास चाहिए, सो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर एंड देन डिवाइडेड बाय ए क्यूब. तो ये रिलेशन आपका बन जाता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. तो ये कॉन्सेप्ट ठीक से पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे. फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया वो आप देखो. डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम की टर्म्स में लिखा, उसके बाद आपने वॉल्यूम ए क्यूब कर दिया और हर एटम का मास को मल्टीप्लाई किया विद नंबर ऑफ एटम्स. राइट, तो वी कैन स्टार्ट अवर क्वेश्चन नाउ. हमारे क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है. ये जो छोटी सी डेरिवेशन थी ये भी इंपॉर्टेंट है. तो Z का वैल्यू चेक करते हैं. हमने कौन सा यूनिट सेल, क्वेश्चन ने यूनिट सेल BCC दिया है. BCC अरेंजमेंट में Z2 होता है. एंड मास आप लोगे 39. पोटेशियम का मोलर मास मतलब 1 मोल पोटेशियम एटम्स का मास. तो यहाँ एटम हमारे पास पोटेशियम का तो एटम है, कोई मॉलिक्यूल दिया तो जैसे NaCl दिया तो फिर 58.5. एटम दिया तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूलर मास लेना है. पर एज लेंथ हमें नहीं है गिवन. देखो क्वेश्चन पे चलते हैं. आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिया है, एज लेंथ नहीं दिया. जब तक एज लेंथ नहीं पता आप यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते. मोलर मास पता है, एज लेंथ पता नहीं, और एवोगैड्रो नंबर भी पता है, वो पुट कर देते हैं. एज लेंथ पता करनी पड़ेगी. साइड पे कैलकुलेट करते हैं. बीसीसी का यूनिट सेल था ना, सो बीसीसी में बेटा इस तरह से निकालते हैं. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज गिवन टू अस, वो होता है √3/2a. तो एज लेंथ चाहिए. कैन इट बी रिटन एज 2d अपॉन √3. d का वैल्यू कितना था क्वेश्चन से देखते हैं. क्वेश्चन ने d दिया था 4.52 एंगस्ट्रॉन. तो 4.52 पुट कर दो. इट इज 2 इंटू 4.52. √3 का वैल्यू 1.732. तो ये साइड पे आपको एज लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर आप वहां पुट करोगे. तो एज लेंथ का वैल्यू आ जाता है 5.21. यूनिट्स क्या थे क्वेश्चन में चेक करते हैं. यूनिट्स थे एंगस्ट्रॉन, तो ये एंगस्ट्रॉन में आएगा. एज लेंथ एंगस्ट्रॉन में आ गई. ठीक है, अब एज लेंथ की जगह 5.21, बट एंगस्ट्रॉन को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. अभी मैंने एंगस्ट्रॉन लिख दिया, बट इसको कन्वर्ट करेंगे अगले स्टेप में. कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में था 2 इंटू 39 और यहां बेटा 5.21 इंटू 10⁻⁻10. अब मीटर्स बना दिया. 1 एंगस्ट्रॉन हैज 10⁻⁻10 मीटर्स. और डिनोमिनेटर में एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23. अब सारी की सारी ऑप्शंस चेक करो, हमें आंसर किस यूनिट में चाहिए. ऑल दी ऑप्शंस आर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि आपने तो एटॉमिक मास ग्राम्स में पुट कर रखा है. 39 ग्राम है ना, उसके किलोग्राम बनाने पड़ेंगे. तो आप क्या करोगे,
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ मतलब कि मैंने 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि ये किलोग्राम में मास आ जाए। अब तुम्हारा आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि आपने एंगस्ट्रॉन को भी कन्वर्ट कर लिया और मास को भी ग्राम की जगह किलोग्राम कर दिया। तो कैलकुलेशन इज लेफ्ट नाउ। 5.21 का क्यूब लेना पड़ेगा, उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद ये बेटा आ जाता है 910 आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, राइट। तो एज लेंथ चाहिए होती है और z का वैल्यू चाहिए होता है। मोलर मास तो हम पता कर सकते हैं, फॉर्मूला दिया होता है, जैसे पोटेशियम दिया है तो क्वेश्चन ने 39 दे या ना दे आपको पता है पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है। सो कमिंग टू दी वैल्यूज, कमिंग टू दी ऑप्शंस, 910 इज रिटन इन डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन आंसर है। डेंसिटी के लिए ये रिलेशन यूज करना है और इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सप्रेशन आया कहां से, कभी भूल जाए तो आप 1 सेकंड लगा के रफ वर्क में इसको डिराइव कर सकते हो। गॉट इट। सो डेंसिटी कैलकुलेशन मेन टॉपिक है हमारे यहाँ पे सॉलिड स्टेट के चैप्टर में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन 23। The number of atoms in 100 gram of an FCC crystal with density 10 gram per centimeter cube and edge length is given 200 picometer। तो इस क्वेश्चन में एक तो एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी कैलकुलेट नहीं करना, मास गिवन है 100 ग्राम, एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी क्रिस्टल है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। डेंसिटी का क्वेश्चन है बट प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। देखो कैसे, नंबर ऑफ एटम्स जब आपको कैलकुलेट करना है तो पहले तो वही रिलेशन लिख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो बेटा इसमें बात यह है कि हमें मोलर मास नहीं दिया, जो भी मास दिया है उसके अंदर एटम्स निकालने हैं। अगर मोलर मास दिया होता है तभी एवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होता है ना, हमें तो कुछ और मास दिया, हमें पता भी नहीं हो सकता ये मोलर मास हो, बट क्वेश्चन ने नहीं कहा कि ये मोलर मास है। तो वट एवर मास इज गिवन, मोलर मास की जगह आप वही मास पुट कर दो जो गिवन है, 100 पुट कर देंगे तो फिर ये जो वैल्यू है ना ये एवोगैड्रो नंबर की नहीं, कुछ और नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। सो आई रिपीट, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैंने ये कहा कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन दी मोलर मास। हमारे क्वेश्चन में हमें जो भी मास दिया है हम उसके अंदर कितने एटम हैं वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हेयर डायरेक्टली। क्या करेंगे हम, डेंसिटी की जगह हम 10 पुट करेंगे, डेंसिटी का सिंबल D होता है या रो होता है, ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। एज लेंथ हमें गिवन है पिकोमीटर, बट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10⁻⁻10 सेंटीमीटर्स, 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर एंड सेंटीमीटर में -10 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर ठीक से पता होने चाहिए। बी केयरफुल फॉर द यूनिट्स एंड देन सब्स्टिट्यूट द अदर वैल्यूज। ये एज लेंथ है और Z हमने क्या लेना है, एफसीसी बोला था क्वेश्चन ने, आप चेक करो, ये देखो एफसीसी बोला है, एफसीसी मतलब Z विल बी 4, Z वैल्यू इज 4 फॉर एफसीसी। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, डेंसिटी की जगह आ गया 10, डेंसिटी इज Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू नंबर। ये M मास है, मास गिवन, तो ये बेटा 10, ये 4 और मास हमें 100 ग्राम दिया था। हमने अब Na नहीं लिखा, मैंने एवोगैड्रो नंबर नहीं लिखा क्योंकि कुछ और नंबर अब आएगा और ये लेना है 200 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। सेंटीमीटर में एज लेंथ ले रखा है इंटू n वैल्यू, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैंसल आउट होता है वो कैंसल करने के बाद n का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10⁻24, 5 इंटू 10⁻24 मतलब कि बी ऑप्शन। यू कैन वेरीफाई द कैलकुलेशन, बी केयरफुल।
क्यूब लेना है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, और जो भी नंबर आएगा वो एवोगैड्रो नंबर नहीं होगा क्योंकि ये हमें मोलर मास नहीं दिया था। बट अलग से कुछ और कैलकुलेशन नहीं करना, इसी फॉर्मूले में मोलर मास की जगह आप अपना गिवन मास पुट करो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कितने एटम्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो डेंसिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 24। अब बेटा हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पे आ रहे हैं। हमने यूनिट सेल का रेडियस, यूनिट सेल का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, उसके बाद डेंसिटी कैलकुलेशन, फॉर्मूला प्रेडिक्शन, ये सब सीखा। अब नया पार्ट है कि आपको क्वेश्चन में NaCl स्ट्रक्चर गिवन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर। If the radius of cation is 100 picometer, what is the radius of anion? आपको cation का रेडियस गिवन और एनायन का रेडियस तुमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नोट के अंदर कुछ लिख रखा है, ये नोट देखो, टेबल क्या बना रखा है, रेडियस रेशो से ज्योमेट्री प्रिडिक्ट होती है, ये याद रखो। किसी भी क्रिस्टल XY को लेते हैं तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो रेडियस रेशो पे डिपेंड करता है। कीप इन माइंड, रेडियस रेशो डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। तो रेडियस रेशो बेटा अगर 0.155 से 0.225 हुआ तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, और उस अरेंजमेंट को प्लेनर ट्रायंगुलर कहते हैं। उस अरेंजमेंट का नाम प्लेनर ट्रायंगुलर है तो फिर उसमें ट्रायंगुलर वॉइड्स ही बनेंगे। अगर हमारे पास ये रेडियस रेशो आता है 0.225 से लेके 0.414 तो टेट्राहीड्रल वॉइड्स बनेंगे, और अरेंजमेंट का नाम भी टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होगा। आई मीन टू से कि जो जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट बोलेंगे, और वॉइड्स उसके अंदर टेट्राहीड्रल। और ये रेडियस रेशो आए 0.414 से 0.732, आप उसको ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट बोलोगे, वॉइड्स विल बी ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ऑक्टाहीड्रल वॉइड 6 एटम के टच होने से बनता है, टेट्राहीड्रल वॉइड 4 एटम्स के टच होने से बनता है। इफ द रेडियस रेशो इज वेरी बिग, 0.732 से लेके 1 तक अगर रेडियस रेशो जाता है तो वो अरेंजमेंट को क्यूबिक सेंटर्ड अरेंजमेंट या बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट कहते हैं, और वॉइड को क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक साइट या क्यूबिक वॉइड दोनों चीजें बोल सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी ठीक से पता होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये आपको रेडियस रेशो गिवन है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो टेबल पहले ठीक से अगर हमें क्लियर होगा तो हम हर तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। हमारे क्वेश्चन में NaCl अरेंजमेंट दिया है बेटा। NaCl में ऑक्टाहीड्रल वॉइड बनता है, तो रेडियस रेशो क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन 0.414 आप ले लोगे। वैसे रेंज ये है 0.414 से लेके 0.732 तक, तो एक लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब एक से मिनिमम वैल्यू आएगा रेडियस का, एक से मैक्सिमम वैल्यू आएगा। इस वॉइड के अंदर किस रेडियस का एटम फिट होता है उसके लिए आपको कभी कहेंगे मिनिमम रेडियस निकालो, कभी कहेंगे मैक्सिमम निकालो। हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बोला, हमें बोला रेडियस ऑफ एन आयन, ऐसा नहीं कहा व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल रेडियस या मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम पहले 0.414 लेते हैं और उससे कैलकुलेट करके ऑप्शंस को चेक करेंगे। सपोज कोई भी आंसर नहीं आता, देन वी विल गो टू द अदर वैल्यू 0.732। ठीक है, तो अब आप क्या करो, वैल्यूज पुट करो। रेडियस ऑफ कैटायन 100 दे रखा था, रेडियस ऑफ एनायन हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन में चेक करो, रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पिकोमीटर, इट वाज गिवन टू अस। ठीक है, तो ये बेटा equal to 0.414. Can I get the radius of an ion as 100 upon 0.414? आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद रेडियस ऑफ एन आयन आता है 241.5 एंड इट विल बी इन पिकोमीटर्स। ठीक है, तो पिकोमीटर में 241.5 मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर है। दोबारा से कॉन्सेप्ट समझ लो, फुल टेबल हमें टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस होंगे, तभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। और रेंज दी होती है, रेडियस रेशो का तो रेंज दिया है, ये देखो चारों जगह पे आपको रेंज दे रखा है 1 2 3 एंड 4।
ये जो रेंज दिया है, रेंज में एक होती है मिनिमम रेडियस की वैल्यू, एक होती है मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू। इन दोनों के बीच में जो भी रेडियस होगा वो इस वॉइड में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 241.5 पिकोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज 25. अ सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। अब रेडियस ऑफ कैटायन दिया है, पीछे भी रेडियस ऑफ कैटायन दिया था, 100 पिकोमीटर दिया था, अब 170 दे दिया। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ एन आयन। इस बार क्लियरली मेंशन्ड है मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस। ठीक है, कितने बड़े से बड़े साइज का एनायन उस वॉइड में फिट होगा जो NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वॉइड बनता है। तो अभी अभी हमने देखा था NaCl का डिटेल क्या था, अगर मुझे लिखना हो, फॉर NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, फॉर NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम रेडियस रेशियो होता है 0.414 से लेके 0.732 तक, ये होता है ना रेडियस रेशो। तो अब हम कौन सा लेंगे, बड़ा रेडियस बोला है, मैक्सिमम रेडियस आपको बोला गया है। तो मैक्सिमम रेडियस ऑफ एन आयन कब आएगा, ये ले लो, कैटायन की वैल्यू 170 डिवाइड बाय दिस इक्वल टू 0.414। अगर मैं 0.414 लूंगी तो रेडियस ऑफ एन आयन मैक्सिमम आएगा, फॉर मैक्सिमम रेडियस ऑफ एन आयन। ठीक है, पहले हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, इसमें फिर हम मिनिमम भी करके देख सकते हैं, बट क्वेश्चन ने सिर्फ मैक्सिमम बोला है। ठीक है, अगर मैं 0.732 ले लूं फिर मिनिमम रेडियस एन आयन का आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है हमारे पास एन आयन का रेडियस। अब वैल्यूज पुट कर चुके हैं हम। लेट्स कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन आयन। रेडियस ऑफ एन आयन बनेगा 170 नॉट मल्टीप्लाइड, 1 सेकेंड, लेट मी डू द करेक्शन। ये बेटा रेडियस ऑफ एन आयन आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 0.414। ठीक है, 0.414 छोटा नंबर है इसलिए रेडियस मैक्सिमम आएगा। तो ये डिवाइड करने के बाद आता है 410.6 पिकोमीटर। 410.6 मतलब आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मिनिमम रेडियस कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए मिनिमम रेडियस ऑफ एन आयन, फॉर मिनिमम रेडियस ऑफ एन आयन हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एन आयन इज इक्वल टू, फिर 0.732 लोगे अगर मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके आपके पास मिनिमम आएगा, ये था 170, ये रेडियस ऑफ एन आयन इक्वल टू 0.732। तो रेडियस ऑफ एन आयन बनता है 170 अपॉन 0.732। तो ऑटोमेटिकली उससे छोटा आएगा। यू कैन कैलकुलेट, इट विल बी दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेडियस। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कैसा रेडियस लेना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 0.414 लिया जाता है, बट आपको अगर मिनिमम रेडियस कह दिया जाता फिर 0.732 लेना है। गॉट इट? सो क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स कम टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इन ए क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड AB, the radius of cation is given to us 148 picometer. Radius of an ion is also given 195 picometer. कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए कैटायन का। आपको गिवन क्या क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एन आयन। तो क्या करेंगे हम, देखो अभी अभी टेबल देखा था आपने इस क्वेश्चन में, ये टेबल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर भी मेंशन्ड हैं, ये हमें लर्न करने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6, 8 कब कब आएंगे, जब जब ये कॉलम में रेडियस रेशो दिया है। मतलब रेडियस रेशो पता हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता चलेगा, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल भी पता चलेगा, और उसके अंदर वॉइड कौन सा बनता है वो भी पता चलेगा। लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन। हम 26 क्वेश्चन पे थे, तो हम क्या करेंगे, हम रेडियस रेशो कैलकुलेट करेंगे। रेडियस रेशो होता क्या है, इट इज द रेडियस
रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन का वैल्यू आपको गिवन है 148 पिकोमीटर। रेडियस रेशो के यूनिट्स कोई भी नहीं होते क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ना। एनायन का रेडियस दिया है 195। जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 0.758। 0.758। अब 0.758 किस रेंज में आया याद है? 0.758 इसमें आएगा 0.732 से लेके 1 तक का जो रेडियस रेशो होता है। इस अरेंजमेंट को बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट बोलते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ये टेबल के अंदर लास्ट में दिया हुआ था। फुल टेबल हमारे टिप्स पे होना चाहिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट में, इस वाले अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। गॉट इट? सो आंसर इज बी ऑप्शन। जब जब रेडियस रेशो पता हो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन दिया जाता है, दोनों को हम डिवाइड करके रेडियस रेशो निकाल के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह से पता किया जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन 27। कैल्शियम +2 and F negative ions, they are located in CaF2 crystal respectively at face centered cubic unit points and in dash। मतलब कि आपका क्वेश्चन CaF2 की बात कर रहा है। जब ये क्रिस्टल सिस्टम बनेगा तो उसमें कैल्शियम कहाँ है वो तो बता दिया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पे रिस्पेक्टिवली लिखा बेटा। कैल्शियम का बता रखा है, फ्लोराइड का नहीं बताया। फ्लोराइड का इन ऑप्शंस में से चूज करना है। तो टेबल इंपॉर्टेंट है। टेबल अगर पता हो तभी आप कर सकते हो। ये लर्न करने की बात है कि NaCl में सोडियम कहाँ है, क्लोराइड कहाँ है। इसी तरह कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम कहाँ पे है, फ्लोराइड कहाँ पे है, ये हमें लर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो टेबल में पूरा डिटेल दिया है। पहले तो हम अपने ही क्वेश्चन पे आते हैं। टेबल, फुल टेबल बाद में देखेंगे। हमारा क्वेश्चन CaF2 के ऊपर था। CaF2 ये लिखा है, 1 सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर दूं। CaF2 ये आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर में CaF2 लिखा है। तो उसमें बेटा कैल्शियम +2 CCP में एंड फ्लोराइड्स आर इन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आप इसको थोड़ा एनलार्ज करके टेबल को देखो। फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कैल्शियम कहाँ पे? कैल्शियम इज प्रेजेंट इन CCP अरेंजमेंट। इस तरीके से लर्न होना चाहिए। ये हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कैटायन और एनायन का पोजीशन हमें लर्न करना है। और हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं ये मेन 5, NaCl, फिर सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड। कीप इन माइंड हमारा क्वेश्चन जो CaF2 के ऊपर आया बेटा, CaF2 जो स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे कि NaCl स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, ऐसे CaF2 को फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम +2 इज प्रेजेंट इन CCP अरेंजमेंट। मतलब कि इसके 4 एटम्स होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। और फ्लोराइड कहाँ पे है? फ्लोराइड इज प्रेजेंट ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इस फ्लोराइड के 8 एटम होंगे, कैल्शियम के 4 होंगे। आपके पास कैल्शियम +2 4 एंड फ्लोराइड आपके पास 8। अब हम अगर रेशो निकालते हैं तो 4:8 मतलब 1:2 है ना। 1:2 मतलब CaF2 आंसर। तो हम पहले अपना आंसर टिक कर लें। हमारे को पूछा था फ्लोराइड कहाँ पे है, आंसर है फ्लोराइड इज इन दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब बाकी स्ट्रक्चर्स एक बारी देख लो ताकि नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम ना आए। एक बारी देखो टेबल में सबसे पहले नंबर पे NaCl स्ट्रक्चर गिवन है। NaCl में बेटा सोडियम कहाँ है और क्लोराइड कहाँ है, टेबल में तो गिवन है, आप फिर भी देखो। क्लोराइड इज प्रेजेंट इन CCP अरेंजमेंट और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होता है। ये लर्न होना चाहिए।
एट एनी कॉस्ट। सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट में जो क्लोराइड होगा वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, एंड सीजियम +2 इज प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर को क्यूबिक साइट या क्यूबिक वॉइड भी कहते हैं। फिर आता है ZnS स्ट्रक्चर। इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन टेबल में गिवन है। इसमें सल्फाइड CCP अरेंजमेंट में है, और जो जिंक +2 है वो हाफ ऑफ द टेट्राहीड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। फिर CaF2, वो तो अभी अभी क्वेश्चन के थ्रू कर ही लिया। फिर आता है बेटा एक Na2O। याद रखिए Na2O इज कॉल्ड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। Na2O एंटी फ्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या करेंगे, कई बार Na2O बोलते ही नहीं, ऐसे कहते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैटायन इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर से ऑपोजिट है। तो आप क्या करोगे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो कैटायन था ना कैल्शियम, वो CCP बना रहा था, यहां कैटायन की जगह एनायन CCP बनाएगा, और जो कैटायन है वो आएगा टेट्राहीड्रल वॉइड्स के अंदर। गॉट इट। तो ये इंफॉर्मेशन हमें लर्न करनी है। रेडियस रेशो के पहली चीज है, रेडियस रेशो के बाद ये एनायन का पोजीशन, कैटायन का पोजीशन, और बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये जो टेबल दिया मैंने उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और उसमें कितने कितने फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट हैं वो भी गिवन है। अगर मैं आपको एनलार्ज करके दिखाऊं तो ये टेबल में आपको एक एक बात टिप्स पे होनी चाहिए, कितने फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सोडियम का अलग से, क्लोराइड कैटायन का अलग, एनायन का अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो यू हैव टू लर्न फॉर ईच ऑफ देम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं और टच कर रहे हैं। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स टू अ पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशो, formula units, and the position of cation, position of anion in the crystal. This thing is to be learnt properly. Got it? तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। आंसर आपका आ गया कि फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल। देखो बी ऑप्शन में लिखा है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल, दैट इज नॉट द आंसर। ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय फ्लोराइड। ठीक है, तो ए आंसर है। लेट्स कम टू क्वेश्चन 28। NaCl structure can be converted to cesium chloride structure. NaCl structure हमें गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है सीजियम क्लोराइड में। तो ऑप्शंस में लिखा है कि प्रेशर लगाने से क्या ये कन्वर्ट होगा, या हीट करने से, या दोनों हीट एंड प्रेशर, या कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NaCl स्ट्रक्चर से जब सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर बनेगा, ये याद रखो NaCl स्ट्रक्चर में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इस वाले स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। एक में 6 और एक में 8। ठीक है, तो कहने का मतलब NaCl में जो सराउंडिंग एटम है वो कम है, सीजियम क्लोराइड में सराउंडिंग एटम्स ज्यादा है। 1 sodium is surrounded by 6 chlorides in NaCl structure, but in cesium chloride 1 cesium is surrounded by 8 क्लोराइड्स। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे होगा, हाई प्रेशर अगर हम कर दें, हाई प्रेशर करने से एटम्स पास पास आ जाते हैं, मतलब आप दबा रहे हो उसको, हाई प्रेशर करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। कॉमन सेंस की बात है, हाई प्रेशर विल इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई प्रेशर विल bring the atoms closer, it will increase the coordination number। बट उल्टा कर दिया, अगर हाई टेम्परेचर कर दिया तो एटम्स दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। चाहे ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, एक एटम भाग के दूसरी जगह नहीं जा सकता, पर अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट तो कर सकता है ना। सो हाई टेम्परेचर से वाइब्रेट करने लगते हैं, सो दे ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। सो हाई टेम्परेचर विल डिक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई टेम्परेचर से कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट तो हाई प्रेशर से सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर सीजियम में कन्वर्ट हो जाएगी।
और अगर आपने सीजियम क्लोराइड को NaCl में कन्वर्ट करना है, अगर बैकवर्ड एरो वाला काम करना है, बैकवर्ड एरो को देखो, ये बेटा ये बैकवर्ड एरो है, बैकवर्ड में क्या हो रहा है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जा रहा है NaCl में, तो हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड रिएक्शन होना है, हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है ये कन्वर्जन है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा मत समझ लेना कि हम NaCl को सीजियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम NaCl वाला स्ट्रक्चर की जगह सीजियम क्लोराइड वाला स्ट्रक्चर अगर लेके आना चाहते हैं तो हमें हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो योर आंसर बिकम्स A option. High pressure is by application of pressure will be required. Got it? So this is again an important one. Question 29. Number of carbon atoms present per unit cell of diamond. डायमंड का यूनिट सेल है तो उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। देखो डायमंड एक कार्बन का नेटवर्क है, सिर्फ कार्बन ही कार्बन से बना होता है डायमंड, और एवरी कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में पैक्ड है। यूनिट सेल डायमंड का पता होना चाहिए, ये भी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो आई कैन मेंशन दैट डायमंड हैज ए FCC स्ट्रक्चर, FCC और CCP, आप कुछ भी बोल सकते हो, FCC और CCP स्ट्रक्चर विद carbon atoms forming cubic close packed arrangement. Carbon atoms forming cubic close packed arrangement. ठीक है, कार्बन्स के थ्रू CCP अरेंजमेंट बनता है। मतलब अगर CCP अरेंजमेंट बन गया तो उसका क्या मतलब होगा, फिर उसमें 8 कॉर्नर्स पे एटम होंगे। कौन सा एटम, कार्बन का ही एटम, पर यूनिट सेल के अंदर तो 1/8 आएगा, और 6 फेस के सेंटर पे कार्बन होगा, और यूनिट सेल के अंदर हाफ आएगा। टोटल 4 कार्बन एटम आ गए। उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर भी कार्बन है। पहले कार्बन ने CCP बनाया। ऑल्सो इन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगेन कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब जब जब आपके पास FCC है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो 8 होते हैं 4 के पीछे FCC अरेंजमेंट में, या कह लो CCP में। तो कहना इससे फिर ये भी 4 हो गए क्योंकि हाफ करना था। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड इन 1 यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 unit cell of diamond are 4 plus 4 8 atoms of carbon are there। तो कार्बन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका बना C ऑप्शन, 8 आया था ना आंसर। तो फिर से देखो, 2 चीजें ही बस याद रखनी है कि कार्बन एटम्स पहले CCP अरेंजमेंट बनाएंगे, CCP बनाएंगे तो 4 एटम्स हो जाएंगे। उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हुए, जब जब CCP होता है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों बनते हैं, पर टेट्राहेड्रल वॉइड को 50% ऑक्यूपाई कर देता है फिर से कार्बन का एटम। तो कार्बन 4 plus 4 8 एटम्स एक यूनिट सेल में आएंगे। इज इट ओके? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन ए क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। देखो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखो, आपको कहा जा रहा है कि तुम्हें सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम दिया, एक पिंच होता है ना, 1 ग्राम एक पिंच जितना होता है, वो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड अगर आपको दे दिया जाए तो उसमें कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं ये पता करना है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl। आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। कैसे करेंगे हम, ये याद होना चाहिए, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स
of NaCl present in 1 unit cell is equal to 4. एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं, वो टेबल के थ्रू दिखाया भी था, आप अगर दोबारा देखना चाहते हो तो ये डिटेल है Na प्लस ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में, क्लोराइड CCP अरेंजमेंट में, ठीक है। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड मतलब 4 और CCP अरेंजमेंट मतलब 4। तो 4 सोडियम है, 4 क्लोराइड है एक यूनिट सेल में, इट मींस 4 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स हैं। फॉर्मूला यूनिट्स मतलब कितने फॉर्मूलाज फिट होते हैं एक यूनिट सेल में, आंसर है 4, ठीक है। हमें क्या दिया है, 1 ग्राम NaCl। क्या हम सबको पता है कि 58.5 ग्राम NaCl का मोलर मास है। सो मॉलिक्यूलर मास मतलब 58.5 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl फॉर्मूलाज, ठीक है। तो एक में कितना, 1 ग्राम में कितने NaCl है पहले ये पता करते हैं, यूनिट सेल बाद में निकालेंगे। NaCl के कितने फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला यूनिट मतलब NaCl का फॉर्मूला, ठीक है। कितने NaCl हैं बेटा, 1 ग्राम NaCl में आप क्या करोगे, 6.023 इंटू 10⁻23 लेके उसको डिवाइड करोगे 58.5 से। अभी डिवाइड नहीं करते, अभी सिर्फ लिखते हैं। ये क्या चीज आ गई, ये आ गया NaCl फॉर्मूला यूनिट्स, ये NaCl फॉर्मूला यूनिट्स आ गई। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था, हमें यूनिट सेल्स निकालने थे, और ये हमें पता है कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl फिट होते हैं। कहां कहां पे हैं वो 4 सोडियम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में है, 4 क्लोराइड CCP अरेंजमेंट में। एज अ रिजल्ट अब मुझे यूनिट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैन आई राइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या कहेंगे, 4 NaCl formulas are present in 4 NaCl formulas are present in 1 unit cell। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने। यूनिटरी मेथड में जो भी कैलकुलेट करना है वो राइट पे रखा जाता है, हमें यूनिट सेल्स कैलकुलेट करने हैं। तो 4 NaCl प्रेजेंट हैं बेटा किसके अंदर, एक यूनिट सेल में। तो एक के लिए पता करो, एक के लिए आ गया 1/4। फिर हम पता करेंगे एवोगैड्रो अपॉन 58.5 के लिए। एवोगैड्रो अपॉन 58.5 फॉर्मूलाज वर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ NaCl। हमें 1 ग्राम दिया था क्वेश्चन ने, ये कैलकुलेशन है, ठीक है। सो फिर से देख लो एक बारी, फिर हम कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे। हमें 1 ग्राम NaCl दिया था, हमें बोला गया था यूनिट सेल्स निकालो। तो हम क्या करते हैं, पहले ये पता करते हैं 1 ग्राम NaCl अगर दिया है तो उसमें NaCl के यूनिट्स कितने हैं। यूनिट्स मतलब उसके फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं। तो वो बेटा इस तरीके से कैलकुलेट हुआ, एवोगैड्रो अपॉन 58.5। फिर हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो अपॉन 58.5 को 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट सेल्स निकालना था। तो यूनिट सेल्स के लिए 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर बनता है, इट इज 2.57 इंटू 10⁻21। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट दिस नंबर 2.57 इंटू 10⁻21 मीन्स A ऑप्शन। Got it? So that is all for the lecture, and we have taken up mainly the crystal structures and their related questions। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में NaCl स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, उसके बाद CaF2 जिसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, फिर Na2O जिसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स में कैटायन कहाँ पे प्रेजेंट है, एनायन कहाँ प्रेजेंट है, कैटायन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, एनायन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, एंड क्रिस्टल सिस्टम के वेरियस एग्जाम्पल, जैसे NaCl तो हो गया। NaCl के जैसा और किसका स्ट्रक्चर है, वो KCl का है। कोई भी अल्कली मेटल आएगी तो NaCl जैसा स्ट्रक्चर होगा, KCl की जगह लिथियम क्लोराइड भी आ सकता है। सो इन दिस वे वी हैव टेकन अप द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड देन रेडियस रेशो एंड फॉर्मूला प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है वो सब आपने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट वीडियो में हम मेनली क्रिस्टल डिफेक्ट्स देखेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट्स के वेरियस टाइप्स, उनके यूजेस एंड देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. टिल देन you please keep practicing and thank you and bye bye.